Hello students, good morning. Today we will discuss chapter 5 class 8 mathematics exercise 5.2. Okay, that is data handling. In this exercise we will talk about the pie chart. Okay, so what is pie chart? So first we understand what is pie charts. Okay, so let's see. Pie chart is also called the circle graph. Okay na, pie chart or circle graph both are the same. In a pie diagram, each observation is represented by the sector of a circle. Each observation is represented by the sector of a circle. Okay, we will discuss. Okay, what is sector? Then a circle as a whole represent and total of the component. Means this whole circle is represent the total circle is represent the whole things of the observations, and in that circle small parts are there, that is called the sector. Okay, and this is the formula to find the central angle for the observations, given observations. Okay, so central angle is equals to given observations upon total observations into 360 degree. This is the formula for finding the central angle for the particular observations or particular data. Okay, and one more important thing is that a circle graph shows the relationship between whole and its part. Okay, and it is shows the relationship between whole and its part. Suppose, okay, so one or two circle diagrams I draw here. Let's see. So this is the circle. Okay, and this is the circle. Suppose in mathematics test you got marks science, Hindi, English, like that. Suppose this is the mathematics, this is the Hindi, this is the English, this is the science, and this one is the SST. Okay, so you can see this whole circle represent the total marks of the student. The circle is represent the total marks of the student. This particular sector represent the marks of mathematics. This particular sector represent the marks of Hindi, English, science and SST respectively. You can see here in this circle diagram, SST sector, SST portion is greater. It means the student got the maximum marks or more marks in SST than science, maths and Hindi and finally English. Okay, according to the area of the sectors, you can understand which subject got the highest marks or in which subject you got the less marks. Okay, so this is the circle diagram or pie charts. Okay, for drawing this pie chart or circle diagram, first we have to find the central angle of that particular things. Okay, either maybe subjects, either maybe days, either maybe season, whatever, there is no problem. So central angles, that is the first and foremost things to draw the circle diagrams. Okay, okay students, so this is the question number 1 of exercise 5.2. First we understand the questions, then we will solve it. Okay, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Following pie chart shows the finding of this सर्वेस. मीन्स एक सर्वे किया गया स्थिति में, उस सर्वे में पूछा गया कि आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है, तो उस सर्वे के बाद जो डेटा आया है वो हमारे पाई चार्ट में शोज किया गया है. यानी कि जितने लोगों के ऊपर सर्वे किया गया है उनमें से 40% लोग पाए जो है लाइट म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं, 30% लोग जो है फोक म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं, 10% जो है ना वो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं और 20% जो है ना वो सेमी क्लासिकल म्यूजिक को पसंद कर रहा है. ये एक सर्वे में डेटा जो आया था उसके अकॉर्डिंग पाई चार्ट बना दिया इन्होंने. ठीक, अब ये बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर हमें देना है. तो सबसे पहला है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड. यानी कि अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं तो कितने लोगों के ऊपर सर्वे किया गया है. दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, तो हमें निकालना है कि सर्वे में कितने लोग शामिल किए गए थे. तो कितने लोग पसंद कर रहे हैं इसको क्लासिकल, 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक. और क्लासिकल म्यूजिक के यहाँ पे परसेंटेज कितना है, 10%. यानी कि मान लो जितने लोगों के ऊपर सर्वे किया गया उसका 10% क्लासिकल है, तो उसका 10% यानी कि, और ये बोल रहे हैं कि 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं,
20 peoples liked a classical music. It means 10% of total peoples is equals to 20. क्यों होगा? क्योंकि 10% ऑफ द टोटल, पाई चार्ट क्या बताता है? 10% ऑफ टोटल, समझ में आ गया? जितने लोग सर्वे में शामिल हुए उसका 10% लोग ही क्लासिकल म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं, तो वो 10% कितना होगा? 20 पीपल्स। तो सर्वे में कितने लोग शामिल हुए? आई डोंट नो। तो हम क्या करेंगे? एक्स ले लेते हैं। लेट एक्स पीपल बी इंक्लूड इन द सर्वे। ओके, सो लेट एक्स नंबर ऑफ पीपल इंक्लूड इन सर्वे। ओके, यानी कि x पीपल सर्वे में इंक्लूड हुए, तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है ना? दैट इज 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20। क्यों है? क्योंकि देखो ये टोटल पीपल है, उसका 10% निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड बाय द क्लासिकल म्यूजिक, एंड दैट इज गिवन इन 20 इन क्वेश्चंस। सो अब यहां पे निकालेंगे, 10% हटाएंगे तो 100, ऑफ का मतलब इनटू, और ये 20, ये 100 का इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 का डिवाइड हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करना जानते ही होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमको बता सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं। x इज इक्वल टू 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। ओके, सो 10 10 जा 100 एंड दैट 20 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 200। हाउ मच वी गॉट x का वैल्यू? 200। इसका मतलब ये हुआ कि 200 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया है। समझ में आ गया? यानी टोटल पीपल्स इंक्लूड इन द सर्वे इज 200। क्लियर? देन नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी कि कौन सा म्यूजिक सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। तो आप तो पाई चार्ट से देख सकते हैं सबसे ज्यादा बड़ा सेक्टर किसका है? लाइट म्यूजिक का। तो ऑफ कोर्स लाइट म्यूजिक इज मोर लाइक्ड बाय द पीपल। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक है ना? सबसे ज्यादा किसको पसंद किया गया? कौन सा म्यूजिक? लाइट म्यूजिक का, क्योंकि ये हमें क्लियरली वहां से दिख जा रहा है। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, 1000 सीडी, यानी कि एक कैसेट कंपनी है वो 1000 सीडी बना रही है, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, यानी कि तो सबको कितना कितना सीडी बनाएंगे, यानी कि लाइट म्यूजिक का कितना सीडी बनाएंगे और क्लासिकल म्यूजिक का कितना सीडी बनाना है, और उसका सेमी क्लासिकल का और फोक म्यूजिक, यानी कि उनको 1000 सीडी बनानी है। टोटल सीडी 1000 बनाने हैं, लेकिन उस 1000 में से लाइट म्यूजिक के कितने सीडी बनाएंगे, फोक म्यूजिक के कितने सीडी बनाएंगे, तो हमें एक संख्या बतानी सबकी। तो बहुत इजी है, टोटल हमारा कितना है? 1000 है, तो हम परसेंट जितना दिया है उसके हिसाब से निकालते जाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारे पास नंबर ऑफ कैसेट्स, ओके, या नंबर ऑफ सीडीज बोल सकते हैं अपन, है ना? नंबर ऑफ सीडी ऑफ लाइट, है ना, म्यूजिक। तो लाइट म्यूजिक का कितना हो जाएगा? 40% ऑफ 1000, है ना? ये हो जाएगा 40% ऑफ 1000। तो ये हो जाएगा आपका 40% को हटाएंगे तो 100 नीचे इंटू 1000, 120 कैंसिल करेंगे, या 10 बचा, या 40, यानी कि ये आ जा रहा है आपके पास 400। तो नंबर ऑफ सीडी ऑफ लाइट म्यूजिक कितनी बनाएंगे? वो 400। अब सेकंड निकाल लेते हैं, है ना? सेकंड यानी कि यहां से अपन लेते हैं नंबर ऑफ सीडीज ऑफ फोक म्यूजिक निकाल लेते हैं अपन, है ना? फोक म्यूजिक ये कितना है? 30%। तो कितना हो जाएगा ये? 30% ऑफ 1000, ये कितना होगा? 30/100 इंटू 1000। तो ये 120 कैंसल, यानी कि 30 इंटू 10, ये आ गया हमारा 300, है ना? तो इस तरीके से फोक म्यूजिक के कितने सीडी बनाएंगे? 300। समझ में आ गया? तो लाइट म्यूजिक, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल की आप अपने से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से वहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, दैट इज 10% ऑफ 1000। 10% ऑफ 1000 निकालोगे तो 100 आ जाएगा, और सेमी क्लासिकल का निकालोगे तो 20% ऑफ 1000 यानी 200 आ जाएगा। तो दो चीजें आपके लिए हम छोड़ रहा हूं, वो आप खुद कर लेंगे, है ना? क्योंकि इतना समझ में आ गया है तो बाकी चीज आप बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। Okay, so this is the question number 2. You can see
A group of 360 people. Total people how many? 360. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three season rainy, winter and summer. यानी कि एक लोगों से पूछा गया, 360 पीपल को उन्होंने पूछा, यानी 360 लोगों को उन्होंने मतलब इंक्लूड किया और उनमें उन लोगों से पूछा कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है। तो उनमें से ये डेटा निकल के आया कि समर जो सीजन है ना वो 90 लोगों ने पसंद किया, यानी कि उसके फेवर में 90 वोट्स गए, और रेनी सीजन के फेवर में 120 वोट्स और विंटर सीजन के फेवर में 150, यानी सबसे ज्यादा जो कौन सा सीजन के फेवर में वोट गए वो है हमारा विंटर। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। उसमें नंबर 1 है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो यू कैन सी फ्रॉम द टेबल, ओके, इट इज वेरी इजी कि 150 वोट जो है विंटर सीजन को मिले हैं, तो 150 सीजन वोट से ही जो है ना हमारा विंटर को मिले, तो वो ज्यादा मिला है। तो यहाँ पे विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, यानी कौन सा हो जाएगा? विंटर सीजन, ओके, दैट इज 150 वोट्स, ओके। विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले 150। ठीक, फिर बोल रहे हैं फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, यानी कि विंटर का सेंट्रल एंगल निकालना है, रेनी का सेंट्रल एंगल निकालना है और समर का। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया हूं वीडियो में, अगर भूल गए हो तो रिवाइज करके दोबारा से वीडियोस को देख लीजिए। सेंट्रल एंगल, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, सेंट्रल एंगल अपन एक एक करके निकालेंगे सबका, है ना। सेंट्रल एंगल ऑफ समर, किसी का भी हम पहले निकाल सकते हैं, समर विंटर किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। तो ये होता है हमारे पास समर में कितना वोट्स मिले, नंबर ऑफ वोट्स, है ना, फॉर समर 90, और टोटल कितना है, टोटल कितना है 360 पीपल, ओके, इनटू 360 डिग्री। देखिए फॉर्मूला मैं आपको शुरू में बता चुका था। यहाँ पे क्या होता है कि हमें समर का सेंट्रल एंगल निकालना है, तो समर के यहाँ पे वोट कितने हैं वो हमने टेबल में देखा 90, टोटल पीपल कितने हैं 360, और इंटू 360 डिग्री ये होता है, यानी यहाँ पे ये 360 डिग्री ये सब में आएगा, है ना। ये वैल्यूज चेंज होते हैं लेकिन 360 डिग्री हर एक चीज में आता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, वोट्स फॉर द समर सीजन अपॉन टोटल इंटू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समर का सेंट्रल एंगल आ जाएगा। तो दिस 360 इंटू 360 कैंसल वन टाइम, तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। तो यानी कि समर का जो सेंट्रल एंगल आया है 90 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा आप निकालेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी। रेनी में कितना वोट है 120, तो ये हमने 120 लिख दिया। टोटल कितने लोग हैं 360, ये 360 आ गया इंटू 360 डिग्री, ये 360 डिग्री सब में रहेगा, ध्यान रखना इतना, है ना। तो ये 360 अगेन कैंसल, ये 1 डिग्री, यानी कि ये आपका आ गया 120 डिग्री। तो रेनी का आ गया 120 डिग्री। और अब निकालेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर, है ना, विंटर। ये हमारे पास विंटर के वोट कितने हैं 150, कितने लोगों पर सर्वे मतलब टोटल इंक्लूड है 360 इंटू 360 डिग्री। सिमिलरली अगेन कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया 150 डिग्री। तो तीनों हमारे सीजन का सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिया है। फॉर्मूला अच्छे से समझना है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ द पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, यानी ये जो सेंट्रल एंगल निकाले हैं इन्हीं का हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक सर्कल बनाना है। एक सर्कल बना दीजिए, ओके। आप अपने मर्जी से छोटा बड़ा सर्कल कैसा भी बना सकते हैं, आपको एक सर्कल बनाना है जिस तरीके से, ठीक है। सर्कल में आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, ये सेंटर पॉइंट होगा, तो हमने एक लाइन खींची सिंपली, ठीक है। आप भी इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए, है ना। अब हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसके पार्ट्स बताना है। तो समर सीजन का कितना है 90 डिग्री, तो समर सीजन में 90 डिग्री वोट है, तो इस लाइन के ऊपर यानी कि यहां पे इस पॉइंट पे, इस लाइन पे 90 डिग्री बनाना है प्रोटेक्टर यूज करके। आपको यहां पे एंगल बनाना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सीधा जाएगा, है ना, ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो ये हो गया 90 डिग्री,
ठीक है, इस तरीके से। तो आपके पास ये लाइन मिल गया, सेकंड लाइन आपके पास ये मिला, ठीक है। अब आपको कितना बनाना है, 120 डिग्री, किसके लिए, रेनी के लिए। तो ये जो लाइन आया है ये वाला है ना, इस लाइन पे ये पॉइंट पर यहां से लेकर 120 डिग्री बनाना है। तो ये 90 से बड़ा होता है, तो मैं अपने हिसाब से बना देता हूं, ये आ गया 120 डिग्री। आप अपना प्रोटेक्टर से यूज करके आप इसको एंगल्स को बना लेंगे और फाइनली 150 बचा, तो ये 150 हो जाएगा हमारे पास, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो जितने भी सेंट्रल एंगल निकलेंगे उनका सम हमेशा 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, और जब राउंड कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री एंगल होता है। तो सारे सेंट्रल एंगल का वैल्यू 360 डिग्री ही आता है। यहाँ पे भी देखो 90 प्लस 120 प्लस 150 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये 90% क्या हो गया, ये आपका ये समर सीजन हो गया, और ये क्या हो गया, रेनी, देन विंटर। तो ये आपका क्या हो गया, पाई डायग्राम या पाई चार्ट बन गया, उस डेटा का पाई डायग्राम बन गया। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना, और सेंट्रल एंगल उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका फॉर्मूला समझना। फॉर्मूला आपको पता है और हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया है फॉर्मूला का। अगर आपको प्रॉब्लम्स होगी तो फॉर्मूला आप देख सकते हो, वीडियो की स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन समझेंगे और बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारी टेक्निक्स पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।